When you talk about big politicians, well renowned actors, or even business tycoons, all of them are highly proficient, they have great talents, and they are extremely hardworking. But apart from that, they have one more thing, they have one more talent that captivates every person who looks at them. That is their great communication skills. उनको पता है कि वो अपनी स्किल्स को, वो अपने आइडियाज को कैसे ऑडियंस को या अपने कंज्यूमर्स को सेल कर सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर. आप मोदी जी के फैन हो या नहीं हो, बट एक चीज से तो आप मेरे से 110% अग्री करेंगे. जब भी मोदी जी एक स्पीच दे रहे होते हैं, अपनी जनता को एड्रेस कर रहे होते हैं, देन ऑल आईज एंड ऑल ईयर्स आर ऑन हिम. इट्स लाइक ही हैज अ मैजिक. ही जस्ट कैप्टिवेट्स एवरीवन्स अटेंशन टुवर्ड्स हिम. इट्स नॉट बिकॉज उनकी स्पीच बहुत ही ज्यादा वेल रिसर्च्ड होती है एंड वेल रिहर्स्ड होती है, वो तो ऑब्वियस सी बातें होती ही है, बट उसके अलावा ही नोज हाउ टू यूज हिज पिच, हिज पेस, how to add humor and emotions to his speech, ताकि वो अपनी जनता से, अपनी ऑडियंस से बेहतर कनेक्ट कर पाए. शार्क टैंक भी देखते ही होंगे आप. उसमें फंडिंग सिर्फ बहुत ही अच्छे आइडियाज को नहीं मिलती. फंडिंग उसको मिलती है जो एक्चुअली में अच्छे आइडियाज के साथ साथ उन आइडियाज को शार्क्स तक पहुंचा भी पाते हैं. वो उनको अपना आइडिया डिलीवर कर पाते हैं, प्रॉपरली समझा पाते हैं. अगर उनकी पिच अच्छी नहीं हुई तो they won't get a funding, and that's the magic of having great communication skills. So if you want to capture anyone's attention, आप चाहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पे आप हिचकिचाए ना, नर्वस ना हो, किसी भी इंसान से प्रॉपरली कॉन्वर्सेशन कर पाए, उन तक अपनी बात डिलीवर कर पाए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि हर टिप, हर ट्रिक, everything will literally transform you. वो आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर नहीं बनाएगा, वो आपको एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनाएगा. And that is my promise. तो देर किस बात की, let's go straight into the video. And if you're not subscribed yet, please go hit the subscribe button, hit the like button. It really helps me a lot. Thank you. Tip number 1. हम सबको लगता है कि great communication skills start with speaking. बट बोलने से पहले हर इंसान कुछ देखता है. आप अगर किसी रूम से एंटर कर रहे हो या कोई इंसान आपसे बात करने आ रहा है, तो सबसे पहले आप उस इंसान को देखोगे ना. You will notice that person. So the moment you enter the room, that is your first impression. Always and always remember, the most important thing that you first have to work on is your बॉडी लैंग्वेज. और बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आपके फीचर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आप एकदम खूबसूरत लगने चाहिए. नहीं, बॉडी लैंग्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी सिंपल थिंग्स, जैसे कि योर जेस्चर्स, द वे यू वॉक, योर पोस्चर. तो बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखने के कुछ टिप्स. सबसे पहले तो whenever you are walking, walk straight with your shoulders back and chin up. Don't walk in a slouchy way. Not at all. Second, even when you're sitting, your posture should be straight. आपके पैर जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी तरफ होने चाहिए, उसके opposite नहीं. Whenever you are talking to a person, always make sure to make eye contact with that person approximately 50% to 70% of the time whenever you are speaking or listening to that person, so that you look interested in that person and not creepy. Because obviously बात है, आप किसी को continuously ऐसे देखोगे तो that person will creep out यार. So don't look at that person continuously. 50 to 70% of the time is a good range. Always and always wear clean, tidy clothes with good hair, your beard in shape, and also it's a very small thing, but smelling good also helps a lot. I know these things are very very small gestures, but trust me, ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं. लिटरली इट मेक्स योर फर्स्ट इम्प्रेशन वे बेटर. टिप नंबर 2, अभी भी हम स्पीकिंग पर नहीं आएंगे. बोलने से पहले
सुनना सीखो. Always and always, first of all, learn the art of listening. A lot of people, like majority of people, have this habit. Let's say someone is talking to them and they have this intuition, they have this instinct to actually butt in that conversation before that person even completes. उस इंसान को कंप्लीट नहीं करने देंगे और जो आपके दिमाग में आपका ओपिनियन है सबसे पहले आप जाके बोल देंगे. दिस हैबिट ऑफ योर्स डजंट मेक यू लुक स्मार्टर, it makes you look extremely rude. When you're not allowing the other person to complete their conversation, their opinion, you are actually disrespecting that person. सबसे पहले सुनना सीखो. Let the other person complete their sentence. It's not only applicable in professional world. Even आपके घर में आपके पेरेंट्स के साथ, पार्टनर के साथ, सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ. Learn to listen to what their opinion is. क्योंकि सबसे पहली चीज तो अगर आपकी ये आदत है ना, इसका मतलब आप उनकी बातों पे अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं. आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि what is your opinion about it. मैं क्या सोचता हूँ इस चीज के बारे में, मुझे बोलना है. Stop being so selfish, in this case at least. Let the other person give their opinion. Whenever someone is speaking, let them complete. Wait for 2 to 3 seconds and then speak. उससे ये होगा कि सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ यार, this person is actually listening to me, he is paying attention and he is actually honoring what my opinions are. उसके बाद if you have any doubt, just ask that person कि you said something, does that mean that? पूछो उनसे. Instead of creating assumptions in your mind, it's always and always better to clear out everything. Ask questions very politely. There's nothing wrong with that. And उसके बाद आपका जो भी opinion है, just keep your opinion. It's polite and it's thoughtful. And उसके बाद आप सामने वाले से better और deeply connect भी कर पाएंगे. Third and a very important tip is to focus on 3 P's. What are 3 P's? It is your pitch, your pace and your pausing techniques. आपने इन सब चीजों के बारे में पहले भी सुना होगा. क्यों रेलेवेंट है? पिच का मतलब होता है कि आपकी आवाज कितनी तेज या कितनी सॉफ्ट है. पिच बेसिकली डिसाइड करती है आपकी बात की इंपॉर्टेंस को. मान लो बहुत एक्साइटेड हो तो आपकी आवाज अपने आप ऊपर हो जाती है. आप बहुत सैड हो तो अपने आप आपकी आवाज धीमी हो जाती है. जब आपको कोई सीरियस बात करनी होती है तो हम मीडियम पेस में गंभीरता से बात करते हैं. तो ऑलवेज व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू समवन, अपने मूड के साथ साथ, अपनी बात के साथ साथ अपनी पिच को फ्लक्चुएट करना सीखो. दैट मेक्स योर कॉन्वर्जेशन वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आप सपोज किसी को बता रहे हो कि यार पता है मेरे साथ क्या हुआ था, आई मेट दिस पर्सन देयर, हम लोग बहुत सालों बाद मिले थे, यू नो, शो सम एक्साइटमेंट विद योर पिच. अगर आप कुछ सैड बात बता रहे हो, स्लो डाउन योर पिच, धीरे धीरे. इस तरह से आप अपनी कॉन्वर्जेशन को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. पेस का मतलब होता है आपकी स्पीड जिससे आप बोल रहे हैं. या तो आप बहुत जल्दी बोलते हैं या तो आप बहुत धीरे बोलते हैं. अगर आप बहुत जल्दी बोल रहे हैं, इसका मतलब आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं वो बहुत जल्दी आ रहे हैं. एंड दैट शोज कंफ्यूजन एंड नर्वसनेस. एंड अगर आप बहुत धीरे बोल रहे हैं, it's very boring to listen. So always maintain your pace in a medium level, or it depends on what you are trying to say. You can fluctuate the pace, but yes, it's better to keep it on a medium level. And the third is pauses. You know, हम लोग pauses को इतना ज़्यादा recognize नहीं करते हैं, but pauses are extremely important. कितने सारे कॉमेडियंस होते हैं जो अपनी पंच लाइन देते हैं और स्ट्रेट फेस बना के एकदम पॉज कर देते हैं. एंड पीपल आर लिटरली रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग. It's the magic of pauses. That's why use pauses, and it actually makes a lot of difference. The next tip is improve your vocabulary. Improving your vocabulary in any language that you want to be proficient in is very important. Not only to look smarter,
ऑब्वियसली दैट इज अ पॉइंट, वो तो नॉन नेगोशिएबल है, वो तो होगा ही. यू विल लुक स्मार्टर, no, you will sound smarter, but at the same time, it actually leaves zero room for you to be misinterpreted. और आप बहुत ही क्लियरली अपने सारे पॉइंट्स को सामने वाले तक कन्वे कर सकते हैं. सो हाउ टू एनहांस योर वोकैबुलरी? इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट स्मॉल स्टेप्स कैन एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट. हम सब अपनी फेवरेट सीरीज देखते हैं, हम सब अपनी बुक्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स रीड करते हैं, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी रोल कर रहे होते हैं, तब हमें कितने सारे नए वर्ड्स सीखने को मिलते हैं. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट अगर आपको कोई भी नया वर्ड दिखे, एनी वर्ड, उसको बस जाकर गूगल करो और उसको अपने फोन के नोट्स ऐप पे जाके लिख दो अलॉन्ग विद द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड एंड विद एनी सेंटेंस जिसमें वो वर्ड यूज हो रहा है. And next time, whenever you are talking, just try to include it in your vocabulary. For example, अगर मैं बोलूँ कि oh she is such a lively and gentle woman, it's a normal sentence. अगर मैं ये चीज़ बोलूँ oh she is a vivacious woman, कितना difference पड़ गया. Obviously, the second one sounds much more clear and yeah, you sound smarter. Come on, it is a fact. अगर आप कोई बुक भी पढ़ रहे हो, आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आया, उस वर्ड को गूगल करो, उसी वक्त अपने फ़ोन के नोट्स ऐप में उसको नोट डाउन कर लो अलॉन्ग विद अ सेंटेंस एंड नेक्स्ट टाइम मेक कॉन्शियस एफर्ट टू इंक्लूड इट इन योर वोकैबुलरी. उसके अलावा आप ऑलरेडी इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह पे होंगे, उसमें कितने सारे ऐसे चैनल्स होते हैं दैट एक्चुअली टीच अ न्यू वर्ड एवरी सिंगल डे. फॉलो दोज अकाउंट्स. आप जैसे इंस्टाग्राम खोलोगे, दे पोस्ट देयर कंटेंट, you actually learn a new word every single day. I do that and it's very very helpful. अगर टेक्नोलॉजी है तो उसका फायदा उठाओ ना यार, सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए क्यों यूज कर रहे हो. नेक्स्ट टिप इज स्टॉप यूजिंग फिलर्स इन योर सेंटेंसेस. कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है या फिर अगर आप स्कूल में हैं आपको वाइवा देना होता है, हम सब कुछ प्रिपेयर करके गए हुए होते हैं, एवरीथिंग इज क्लियर इन आवर माइंड, बट जैसे ही हम वहां पर जाते हैं टीचर के सामने, बॉस के सामने या प्रेजेंटेशन देने के लिए हम खड़े होते हैं या फिर स्टेज पे जाते हैं, फॉरगेट एवरीथिंग. ऐसा लगता है कि भाई मैंने इतना प्रिपेयर किया था, मेरे दिमाग में कुछ आ क्यों नहीं रहा है. होता है, सबके साथ होता है. इट्स जस्ट I used to start sweating like anything. मुझे इतनी नर्वसनेस होती थी. उस टाइम पे हमारा पहला इंस्टिंक्ट ये होता है कि हमारे दिमाग में इतने थॉट्स होते हैं that we tend to forget कि हम बोले क्या. And the first word that comes out is hello everyone. Basically today's topic is literally you are writing it on your head that hey, I'm nervous. This is actually what you are showing. Stop using basically, literally, actually. Why? These words are just fillers. They are not used anywhere in your speech or whatever you are giving. सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं और आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हैं. एंड हो सकता है बहुत प्रिपेयर्ड हो. क्या करें इसकी बजाय? जस्ट calm yourself down. आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, let your breath be the first thing that comes out. Take a deep breath, take 2 seconds, 3 seconds आराम से and then start speaking. Don't blabber shit out of your mouth. It makes you look nervous. Instead, अगर आप 2-3 सेकेंड लेकर अच्छे से बोलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा. And let's say you don't know the answer. There is nothing bad in saying I'm sorry sir, I don't know anything about it. Trust me, it's much better than saying anything. Like literally people don't even know the answer and they will say anything. कुछ भी बोलने से बेहतर है कुछ मत बोलो. Sixth tip is always use structure whenever you are giving a speech or whenever you are having an important conversation. कोई भी conversation हो, be it your school, your office, even at home with your partner, with your parents. कभी भी आप किसी को कन्फ्रंट कर रहे हैं या फिर कोई प्रोफेशनल स्पीच दे रहे हैं, उसका एक स्ट्रक्चर बनाओ. बिकॉज यू नो वॉट, वेन यू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, it always goes well. It is always more clearer.
जैसे कि दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला स्ट्रक्चर व्हाट, व्हाई एंड हाउ स्ट्रक्चर। सबसे पहली चीज जो आनी चाहिए, व्हाट इज द इशू और व्हाट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सेकेंड, व्हाई, व्हाई इज दिस टॉपिक relevant, why is this discussion relevant, and how can you actually implement all those discussions, or how can you resolve this problem or this issue। ये एक्चुअली में काइंड सिमिलर है स्टोरी टेलिंग के। आपने कई जगह पे सुना होगा कि whenever you want to have a good conversation or an interesting conversation, use story telling। एक कहानी बनाकर सुनाओ तो लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, जाहिर सी बात है। We are humans, we love to hear stories। और किसी भी स्टोरी का एक स्ट्रक्चर होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट इज सिमिलर टू व्हाट इज द इशू। देन होता है एक्शन, जो उस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट होता है, विच इज why did this happen, and finally the result or the outcome of all this action, which is how to resolve it। आप कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, what, why, how, या फिर conflict, action and result। दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं, and trust me, when you use all these structures, you will see that your conversation is much more easier to actually understand, and you will be able to convey whatever you want to speak in a better and well structured manner, and there will be no room of assumptions or misinterpretations। Last but not the least, and actually the most important tip is emotional awareness। कई बार हम काम कर रहे होते हैं या फिर हम इवन रोड पे चल रहे होते हैं, हमारी कितनी बार तो लोगों से बहस हो जाती है। We get into a lot of conflicts। Why? Because आजकल थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ नहीं या कुछ भी लोड आया नहीं, we get panicked and we react like anything, and that is what you have to avoid। An emotionally mature person always knows how to control their emotions। You have to actually transform yourself from reactant state to actually composure state। कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम आती है, डिस्क्रिपेंसी आती है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, सबसे पहले रिएक्ट मत करो परेशान होकर। जब आप रिएक्ट करते हो ना, तो आप सामने वाले की बात सुनने से पहले कुछ भी मन में अज्यूम करके सीधा बोल देते हो। मे बी दैट थिंग इज नॉट इवन ट्रू व्हाट यू आर अज्यूमिंग। जस्ट लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग, वेट फॉर सम टाइम एंड देन प्रोसेस ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड देन रिएक्ट। अगर आप थोड़ा सा रुक के रिएक्ट करेंगे ना, ट्रस्ट मी, योर डिसीजंस एंड व्हाटएवर कम्स आउट ऑफ योर माउथ will be much more rational, and that is a sign of a high value and emotionally mature person। And that's why it's very important to not react to all the situations that come in front of you। So these are my tips that helped me become a good communicator and good conversationalist। And also let me know whatever your tips are in the comment section below, and please let me know any other video ideas that you want to hear from me। Hit the like button, hit the subscribe button, it does help me a lot। So let's end this video here and see you in the next one। Bye, take care।